Assalamu alaikum, welcome back. Philosophy Made Easy. Today we're going to discuss about the ethics and its main branches in a very detail because last time we just had an introduction of what is ethics, what question ethics answer, and the different branches in a very superficial manner. So let's begin. These are the contents. First of all, we're going to study about a little bit of background, then we're going to discuss about the normative ethics, which is about norms and what we ought to do. So, this normative ethic covers consequentialism, deontology, and virtue ethics. Further, we're going to discuss about the meta ethics. It's not meta ethics, it's meta ethics, then applied ethics, and finally, we just touch the topic of ego and altruism. Let's begin with the word ethics. Ethics word is derived from the Greek ethos, which means custom or habit. Socrates या जो प्लेटो के dialogues हैं, they are customarily regarded as the father of Western ethics. Okay, Socrates was the first philosopher जो हमें आज तक पता है ग्रीक फिलोसफी में. तो उन्होंने जो भी उनकी फिलोसफी हुई उसमें उन्होंने जो एथिक्स के बारे में बताया है हमें प्लेटो से वो पता लगता है. He asserted that people will naturally do what is good, provided that they know what is right, and that evil or bad actions are purely result of ignorance. कहते हैं कि अगर किसी को पता है ना कि अच्छा क्या है, ठीक क्या है, तो वो वही करता है, वो नेचुरली करता है. और अगर कोई बैड एक्शन है दैट मीन कि वो इग्नोरेंट है. सो देयर इज ओनली वन गुड जिसको नॉलेज का वो नाम देते हैं एंड वन इविल जिसको वो इग्नोरेंस का नाम देते हैं. If you are ignorant, you will do evil things, you will do bad actions. And if you have knowledge, you will do good actions. So he equated knowledge and wisdom with self-awareness, meaning to be aware of every fact relevant to person's existence and virtual happiness. कि अगर एक बंदा सेल्फ अवेयर है तो उसमें नॉलेज और विजडम है. So he considers self-knowledge and self-awareness to be the essential good. कि खुद की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. Because the truly wise person will know what is right, what do what is good and therefore be happy. जिसको सब कुछ पता है सिर्फ वही ठीक करेगा और उसको पता है सही और गलत में फ़र्क क्या है. ये सोक्रेटिस का मानना था. एरिस्टोटल क्या कहते हैं? नेचर डज नथिंग इन वेन. नेचर जो है वो कुछ भी यूजलेस नहीं करती. सो इट इज ओनली व्हेन अ पर्सन एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर नेचर and thereby realizes their full potential that they will do good and therefore be content in life. जब उन्हें अपना पोटेंशियल पता लग जाता है कि ये वो सही कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में खुश भी रहते हैं. He held that self-realization is the surest path to happiness. खुद को जान लेना ही हैप्पीनेस का path है, which is the ultimate goal. All other things being merely means to end. अल्टीमेट गोल इनका क्या है? हैप्पीनेस. हैप्पीनेस कैसे अचीव हो रही है? सेल्फ रियलाइजेशन से. ही इनकरेज मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स. मैंने लास्ट में आपको बताया था गोल्डन मीन का. ये हम आगे वर्चू एथिक्स में भी पढ़ेंगे. दो एक्सट्रीम्स होते हैं, जैसा रियल लाइन में होते हैं ना 0 to इन्फिनिटी या 100 तक जा रहे हैं, तो एक मीन पॉइंट होता है जो इन बिटवीन आ रहा है. तो ये वाला जो है ये नेगेटिव मीन है और ये पॉजिटिव मीन है. ठीक है, ये कोवर्ड हो गया और ये ब्रेवरी हो गई. तो इसमें कहीं इन बिटवीन कोवर्ड और ब्रेवरी में आपके पास इन बिटवीन कुछ चीज़ आती है. ठीक है, ये कोवर्ड है, ये ब्रेवरी है. इन बिटवीन आपके पास कुछ चीज़ आ रही है. आपने उसको जो है ना मॉडरेट रहना है, ना अपने नेगेटिव की तरफ जाना ना अपने पॉजिटिव. दोनों एक्सट्रीम्स नुकसान जो होते हैं, आपने मॉडरेट रहना. तो ये इसी तरह मॉडरेशन को कह रहे हैं. मॉडरेशन को इनकरेज करें. द एक्सट्रीम्स
being degraded and immoral. For example, courage है is the moderate virtue between the extremes of cowardice and recklessness. ठीक है, courage जो है वो उसका modern mean होगा या moderate virtue है. And held that man should not simply live but live well with conduct governed by moderate virtue. मतलब कि इतनी करेज हो कि ना वो कोवर्ड में आए, कावर्ड हो जाए, ना वो रेकलेस हो जाए. ठीक है. सो virtue for Aristotle denotes doing the right thing to the right person at the right time. सही चीज़ करनी है, सही इंसान के साथ करनी और सही वक्त के साथ करनी, तो ही वो मॉडरेट होगी. टू द प्रॉपर एक्सटेंड इन द करेक्ट फैशन एंड फॉर द राइट रीज़न. रीज़न भी होना चाहिए राइट. ठीक है. तो ये उनका वर्चू एसेक्स है. खैर हमें इसको आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमने प्लेटो सोक्रेटिस की बात की तो हमने एरिस्टोटल को भी डिस्कस कर लिया. लेट्स डिस्कस अबाउट द नॉर्मेटिव एथिक्स. नॉर्मेटिव एथिक्स जो कि आपके नॉर्म्स हैं. ठीक है. concerned with the establish how things should or ought to be. कैसी होनी चाहिए. How to value them. Which things are good or bad and which actions are right or wrong. ठीक है. It attempts to develop a set of rules governing human conduct or a set of norms for action. ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है. ठीक है. ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है. नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज में आपके पास आ जाता है जी कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, डियोंटोलॉजी है, वर्चू एथिक्स है. वर्चू एथिक्स एरिस्टोटल की है. ठीक है. वो हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ले चुके हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे. टेलियोलॉजिकल एथिक्स को कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहा जाता है. दे आर्ग्यू दैट मोरालिटी ऑफ एन एक्शन इज कंटिंजेंट ऑन द एक्शंस आउटकम. मोरालिटी जो है किसी भी एक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या वो डिपेंड कर रही है ऑन द एक्शंस आउटकम, कि उस एक्शन का आउटकम क्या होगा. अगर तो आउटकम अच्छा हुआ तो वो मॉरल है, अगर आउटकम बुरा हुआ तो वो मॉरल नहीं है. सो अ मॉरली राइट एक्शन इज वन दैट प्रोड्यूसेस अ गुड आउटकम. ठीक है. मॉरली राइट तभी होगा जब वो गुड आउटकम दे रहा है या कॉन्सिक्वेंस दे रहा है. इसीलिए कॉन्सिक्वेंशलिज्म की बात की क्योंकि हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं. Consequentialist theorists must consider question like what sort of consequences count as good consequences? Who is the primary beneficiary of moral action? How are the consequences judged? Who judges them? ठीक है. इस तरह के सवाल consequentialism वाले करते हैं. फिर consequentialist theories में आपके पास फर्दर आता है एक यूटिलिटेरियनिज्म और एक आते ईगोइज्म. यूटिलिटेरियनिज्म जामे बेंथम की है. ठीक है. और जॉन स्टुअर्ट मिल की ये थ्योरी है. पॉलिटिकल साइंस में भी आपने ये थ्योरी पढ़ी हुई है. तो इसमें क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि कोई भी एक्शन है ना वो राइट तब है जब वो मैक्सिमम लोगों के लिए हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है. An action is right if it leads to the most happiness for the greatest number of the people. ठीक है. मैक्सिमम हैप्पीनेस यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर. आप ज़्यादा लोगों को प्लेजर दे रहे हैं. ठीक है. आप ज़्यादा लोगों को प्लेजर दे रहे हैं और पेन को कम कर रहे हैं. ठीक है. प्लेजर आप ज़्यादा दे रहे हैं और पेन को रिड्यूस कर रहे हैं. सो द ओरिजिन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कैन बी ट्रेस्ड बाय as far as the back philosopher Epicurus, where its for a full formation is used by credited by James Bentham and John Stuart Mill. यूटिलिटेरियनिज्म का आपको समझ में आ गया ना कि यूटिलिटी से ये वर्ड निकला है. And it focuses on the pleasure, maximization of pleasure. इसी तरह egoism क्या है, which holds that an action is right if it maximizes good for the self. ईगो की बात हो रही है ना, अना जिसको कहा जाता है. ये अना क्या है कि खुद के लिए सेल्फिश होके बात करें कि खुद के लिए जो आपका मैक्सिमम प्लेजर है वो वही वाला एक्शन ठीक है. Egoism may license actions which are good for the individual but detrimental to the general. ठीक है. खुद के लिए तो ठीक है लेकिन बाकियों के लिए ये detrimental है. Individual egoism holds that all people should do
whatever benefits him or her. Individual egoism, individuals की बात करें. Personal egoism हो that each person should act in his own self interest. ठीक है. Personal individualism कि आपने अपने self interest के बारे में बात करनी है. जो आपको खुशी दे रही है चीज़ आपने वो करनी है, भले वो दूसरों के लिए नुकसान दे. But makes no claim about what anyone else ought to do. ठीक है. पर्सन में वो अपने तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, दूसरों की बात नहीं कर रहे. तो यूनिवर्सल इगोइज्म भी आता है. अब इस इगोइज्म में ना आपके पास एक आया इंडिविजुअल इगोइज्म, एक आया पर्सनल इगोइज्म, देन देयर कम्स यूनिवर्सल इगोइज्म. ये क्या बात करते हैं कि एवरीवन शुड एक्ट इन द वे दैट आर इन देयर ओन इंटरेस्ट. हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेगा. ठीक है.